Good morning, everybody. Good morning, sir. Very good morning. You all are from Standard 8? Yes, sir. Very good. You all are well? Yes, sir. Ready to study this new chapter? Yes, sir. So just respond on the oral questions what I am going to ask you. Which date is today? 13th May 2020. Very good, very good. You know how to read it. Which day is today? Wednesday. Very good, very good. In which class you all are? 8. Very good. Which subject we have to study right now? English. Very good. What is the name of this very English book? It so happened. Very good, very good. Which topic we have to start right now? English story. English story. What will be system of learning now? Online. Online, because now we are facing corona, that is a pandemic, and we need to maintain social distancing, right? So as per the order of central government and state government, we have to avail this very online system of learning. You all have this screen touch mobiles at home. Yes, sir. So in your smartphone you can open YouTube, and in YouTube and on online facility you can avail good online facility, as well as you can see latest slide on YouTube. Now a question arises, how can you open this very YouTube? You can write English class by Rajiv Kumar Sharma, then you will start availing this very facility. For this auto arrival of all the slides, you can subscribe this channel, and for your any vital suggestions and comments, you can deliver message on this very WhatsApp number, right? Yes, sir. You understood all the essential messages Yes, before sir. starting this very chapter? Yes, sir. Right. So we are going to start this new chapter named How the Camel Got His Hump. आज हम लोग, you all are Hindi speaking guys. So Yes, sir. I am bound to speak Hindi also. So आप लोग हिंदी भाषी छात्रागण हैं, जी। इसलिए हिंदी बोलनी आवश्यक है. तो आइए मैं आपके साथ हिंदी में भी वार्तालाप करूंगा, लेकिन इंग्लिश की स्टोरी है इसलिए इसका इंग्लिश पार्ट पहले पढ़ूंगा और फिर आपको हिंदी अर्थ बताते चलूंगा, ताकि आप इसके संबंधित प्रश्न उत्तर को बहुत आसानी से लिख पाए, समझ पाए, पढ़ पाए, सही उच्चारण कर पाए. फॉलो, यू फॉलो? Yes, sir. राइट, वेरी गुड. नेम इज वेरी क्लियर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. इसका अर्थ हुआ कि ऊंट का जो कुबर है, जो ऊंट के ऊपर, शरीर की पीठ के ऊपर जो कुबर निकला रहता है, उसकी वो कैसे उसका बना, इससे संबंधित एक कहानी है. इन एंशियंट टाइम व्हेन all these existence were not in so established form, but were to be ready. That means this creation was taking place. That in that very period, the creation was to be created. That was to be established. At that very time, every animals were serving human beings very patiently, with great dedication. At that time, one of the camels was there who was very idle. अथवा पुराने जमाने में जिस समय सृष्टि की शुरुआत हुई थी, उस समय सभी पशु मानव की सेवा किया करते थे और मानव के वश में हुआ करते थे. They were totally under control of human beings, and it was human being who were controlling all the
creatures. Absolutely. उस समय मानव जाति ही जो थे वो इन सारे पशु पक्षियों के नियंत्रक थे, वो इनके ऊपर अच्छे तरीके से शासन करते थे. Every animal was ready to serve human being. प्रत्येक पशु मानव की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे. At that time, one of the camels was very idle. एक ऊंट था जो बहुत आलसी था. He was not ready to work at all. वो कभी थोड़ा भी काम करने के लिए तैयार नहीं रहता था. But as the governing body of that time was human being were very experienced, very conscious, very awareful, and we are knowing how to control all the animals, how to behave properly with all the animals as per their psyche, as per their mentality, and as per their temperament. हर पशु के तासीर के हिसाब से, उसके गुणवत्ता के हिसाब से, उसकी रूपरेखा के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से मानव उनके साथ व्यवहार करना जानते थे. एंड एनिमल्स वी आर ऑल्सो रेडी टू सर्व देयर मास्टर्स इन ए प्रॉपर वे. और पशु भी जो थे अपने मालिक के साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करना जानते थे, उनकी सेवा करना जानते थे. बट दिस वेरी कैमल, वन ऑफ द कैमल्स, नॉट ऑल द कैमल्स, एक कैमल था ऐसा जो बहुत आलसी था. ही वॉज नॉट रेडी टू वर्क एट ऑल. वो कुछ भी करना नहीं चाहता था. देन व्हाट हैपेंड, इट इज इन दिस स्टोरी इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड दैट द एनिमल्स स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम मंडे. एंड all the animals had started working since Monday. All the animals had started working since Monday, but it was the camel who was not interested to work at all and was lying alone on a hovering desert. तो ये मरुस्थल में अकेले पड़ा रहता था. और what was he eating? He was eating prickles and thorns and forest bushy branches. ये जंगल की कांटेदार पत्तियां, पेड़ पौधे को खा करके पड़ा रहता था. On Monday, first of all, one of the friends of this camel named Horse went to him to say that all animals are going to work in the field, and so I request you, I appeal you, must come with me to work with us so that we can be in a good team. इसने कहा, घोड़ा जो पहला घोड़ा आया इसे कहा कि चलो आप भी मेरे साथ काम करो ताकि हम लोग एक समूह में रह सकें, अच्छा लगे. बट द कैमल सिंपली हम्प. हम्प मीन्स ही produced a big unsatisfactory sound, listening which other animals were going far away from this very camel. ये एक ऐसा आवाज निकलता था मुंह से जिसकी ध्वनि हम्फ आती थी, और वो ऐसा असंतोषजनक ध्वनि था कि जिसको सुनकर ही पशु इससे दूर चले जाते थे. Seeing this sight, the dog went to the master, a man who was the master of all these animals, and told the person, told that man that this idle camel is not ready to work at all, so it is not possible to get the work done by this very camel, and so other animals are also not taking so much interest in working. वो उसने कहा, कुत्ते ने कहा मालिक से
कि वो जो ऐसा है कैमल, आलसी कैमल, वो काम नहीं करता, जिसके फलस्वरूप और भी पशु इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं काम करने में. After some time, the horse also complained to that man that the camel is not ready to work at all. घोड़े ने भी जाकर उस व्यक्ति से कहा कि ये जो कैमल है ये आलसी है, ये करने के लिए कुछ तैयार नहीं है. After that, an ox came with yoke carrying with him. उसके बाद एक बैल, एक जुआ लेते हुए आया जिससे खेत जोतते हैं. And told that very camel, please come with us and work in the field as we all are working together. उसने कहा कि चलो ऊंट भाई आप हम लोगों के साथ फील्ड में चलो, और जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे आप भी काम करो, बड़ा मजा आएगा. We will enjoy together. But again the camel produced a sound hump. उसने फिर एक असंतोषजनक ध्वनि जोर से निकाला, और उस ध्वनि को सुनकर बैल भी चला गया उस व्यक्ति के पास, जो जंगल का मालिक था वहां पर, उसके पास गया और कहा कि वो तो आ नहीं रहा है. इसी तरह से कहने सुनने में इन लोगों का टाइम जा रहा था, और काम जो होता था जंगल का, तो काम तो सुनिश्चित होता था, करना ही पड़ता था, करना आवश्यक होता था, प्रत्येक दिन लोगों को करना पड़ता था. तो मालिक प्रसन्न होते थे, और उन लोगों के जो खाने पीने की व्यवस्था थी, जीवन यापन की व्यवस्था थी, वो अच्छी चल रही थी. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर प्रिस्क्राइब्ड वर्क, दैट ओनर पर्सन was providing needed food to all the animals. Thereafter, what happens? The person listening all the stories, all the complaint from horse, dog, and ox, the person decided to leave this camel alone on desert. वो आदमी इन सबों के कंप्लेन को सुन सुनकर ये निर्णय लिया कि ये जो आलसी कैमल है इसको क्यों नहीं छोड़ दिया जाए मरुस्थल में, वो अकेले रहेगा. लेट हिम लीव एलोन इन दैट वेरी डिजर्ट. उसे उस मरुस्थल में अकेले जीने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसा निर्णय लिया गया. बट एट द सेम टाइम दैट वेरी पर्सन टुक an ultimate decision that all these horse, ox and dog will have to work for double hour in order to adjust the work routine which had become imbalanced because of lack of these very camels. अर्थ ये हुआ कि उस आदमी ने यह निर्णय लिया कि जब ऊंट यहां नहीं आ रहा है और काम सारे इतने सारे हैं, तो इन सारे काम को संपादित करने के लिए ये जो घोड़ा है और कुत्ता है और बैल है, इनको डबल काम करना पड़ेगा. दैट वाज 3 hours मोर. डबल मीन्स 3 hours मोर देन देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी पीरियड. उन लोगों का जो निर्दिष्ट कार्य अवधि था 3 घंटे का, वो डबल हो गया इस एक कैमल के नहीं आने से. एंड एज द ओनर और दैट पर्सन टुक दिस वेरी डिसीजन बिफोर ऑल दीज एनिमल्स, द कैमल, द हॉर्स, द डॉग एंड ऑक्स बिकेम वेरी एंग्री विद दैट वेरी ओनर. जैसे ही उस व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि ऊंट को वहीं अकेले छोड़ दो और आप तीनों 3 घंटा ज्यादा काम करो, यानी कि आप डबल अवधि तक काम करो ताकि ये काम संपूर्ण हो जाए और उसे अकेले छोड़ दो. तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो तीनों काफी क्रोधित हो गए और उनके अंदर गुस्सा आ गया कि देखिए, एक आदमी के चलते हम सभी लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, हम सभी लोग के ऊपर कार्य का भार बढ़ गया है. Then what happened? Then they decided to search
a bona fide motivator who can motivate the camel and enable them to be safe from this double hard work. इसका अर्थ ये हुआ कि उन लोगों ने तब तीनों लोगों ने ये दिमाग लगाया, तीनों लोगों का मतलब है तीनों पशु से, ये हिंदी भाषा में ये शब्द आ जाते हैं, तीनों पशु, जैसे यहाँ पे अर्थ है घोड़ा, कुत्ता और बैल से। इन तीनों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग एक ऐसे मोटिवेटर के पास जाएंगे, एक ऐसे पर्सनालिटी के पास जाएंगे जो इसको वास्तव में चेंज कर सके और काम करने के लिए अभिप्रेरित कर सके। देन दे वेंट टू द ओनर ऑफ द माउंटेन, दैट वाज ए जिन। वो लोग मरुस्थल के मालिक के पास जाते हैं जो एक जिन है। जिन का अर्थ है मतलब द इंडिविजुअल हैविंग मोर शार्पनेस ऑन मेंटल लेवल, वैसा व्यक्तित्व जिसमें मेंटल लेवल पे काफी शार्पनेस होता है और सूक्ष्मता होती है, उसे यहाँ जिन की संज्ञा दी गई है। तो वो लोग उसके पास जाते हैं एंड दे रिक्वेस्टेड द जिन in complaining mode that it is your idol camel, because of whom we are under great pressure of work to perform in the forest. उसने कहा कि ये आपका आलसी ऊंट है जिसके कारण हम लोगों के ऊपर कार्य का अति भार पड़ गया है, कार्य दुगुने अवधि तक करना पड़ रहा है, हमारे मालिक ने हम लोगों को डबल काम दे दिया है। सो आपसे आग्रह है कि आप प्लीज यू गो टू दैट वेरी कैमल एंड मेक हिम अंडरस्टैंड मस्ट टू वर्क इन द फील्ड, अदरवाइज हिज बॉडी विल बिकम inactive, lazy and lethargic. Okay, then the jinn went to that very camel and told him, but how did he appear before the camel? He went to the camel in very dusty form, in very running and jumping mode. The jinn went to the camel in very running and jumping mode in a dusty form. All the वहाँ पे काफी धूल उड़ने लगे जब वो जा रहा था, तो और वो काफी तेजी से जा रहा था, काफी एक्शन में उसके पास जा रहा था कि क्या हुआ भाई, ऊँट भाई क्या हुआ, तुम वैसे बैठे हुए हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुमने तो ऐसा कर दिया जैसा कभी हुआ ही नहीं, तुम्हारे कारण तो चारों तरफ हाहाकार हो गया है, ऐसा वो निकल रहा है। एवरीबॉडी हैज बिकम इन प्रॉब्लमेटिक मोड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो कैमल ने कहा क्यों, तो बोला कि क्यों, छोड़ो तुम खड़े हो पहले। और वो गया तो वहां पे वो जाता है तो वो देखता है कि वो जब खड़ा होता है तो उसके बगल में एक नदी होती है, नदी में ऊंट जो होता है अपना चेहरा देखता है। द कैमल वॉश्ड हिज physical body in that very pond, in that water of that very pond, and see that there is a big hump on his back. वो देखता है कि मेरे पीठ पर एक बहुत बड़ा हम्प है, ये हम्प यानी कि कुबर है। तो उसे वो सोचता है, वो कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा तो अच्छा लुक नहीं लग रहा है। तो उस समय जीन उसे समझाता है, why do you bother for this very hump? Don't bother it, you consider it in a positive form. आपका जो कुबर है इसे आप सकारात्मक रूप से देखो। इसकी खासियत है कि अब आप बिना खाए पिए भी 3 दिन काम कर सकते हो। वो लोग सोमवार से काम कर रहे हैं और आज बृहस्पतिवार हो गया, टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव नॉट वर्कड एट ऑल सिंस मंडे। तुमने सोमवार से कुछ भी काम नहीं किया। अब तुम्हारी सामर्थ्य ये हो गई है कि तुम 3 दिन बिना खाना पीना किए हुए काम कर सकते हो, तुम्हारी इतनी क्षमता बढ़ गई है। तो ये जो मोटिवेशन है, ये जो बात है उस जिन की, उसके दिल में घर कर जाती है और वो सोचता है कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ और मैं इन लोगों से बलवंत हूँ। रियली आई एम सुपीरियर टू ऑल दीज हॉर्स एंड डॉग्स एंड ऑक्स एंड इट इज आई हु कैन वर्क 3 days without eating and drinking water at all.
वो सोचता है कि बिना खाए पिए मैं काम कर सकता हूँ। ऑल दीज पीपुल आर जनरल बॉडीज, ये सभी सामान्य इंटिटीज हैं, सामान्य जीव हैं। ये लोग खाना खाते हैं, फिर काम करते हैं, रूटीन में रहते हैं तो काम करते हैं। बट इट इज आई ओनली हु कैन वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग एंड विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एट ऑल। वो सोचता है कि मैं ही एक ऐसा जीव हूं कि 3 दिन तक बिना खाना खाए पिए काम कर सकता हूं। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग विद देम, और वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके साथ काम करने लगता है। तो इससे हमें प्रेरणा क्या मिलती है? इससे हमें प्रेरणा यह मिलती है कि मोटिवेशन एंड इंटरेक्शन मैटर्स। हमारे जीवन में इंटरेक्शन और मोटिवेशन का बहुत ही महत्व है, और हमें अपने से संस्कारवान लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, अपने से पढ़े लिखे लोगों की संगति करनी चाहिए। उनसे हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिलती है, किसी न किसी रूप में सद्मार्ग मिलता है, ये प्रेरणा होती है। बट यहाँ पे एक बात और भी वाच करने की है, बट द हम was in such a position of camel that was not abolished, and that was never eradicated from his embodiment। उसका जो बॉडी में जो कुबर निकल आया, ये फिर एडजस्ट नहीं हुआ, फिर व्यवस्थित नहीं हुआ, फिर ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कार्यक्रम जिस समय सृष्टि का शुरू हुआ था उसी समय कार्य करना बंद कर दिया था। तो कार्य करना जो बंद कर दिया तो उसका कुबर यूं का यूं रह गया। और दूसरी बात क्या हो गई कि उसका जो बोलने का तरीका है ऊंट का, वो भी चेंज नहीं हुआ, उसका व्यवहार चेंज नहीं हुआ। तो इसमें कहा गया किसी कार्य की जो शुरुआत होती है उस समय हमें पूरी तत्परता से ध्यान देना चाहिए। उस समय हम जो ध्यान देते हैं वही हमारे लास्ट का भी परिणाम आता है। इसलिए इंग्लिश में कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। If you learn in your primary class in a proper way, then it is sure that you will get good marks in matriculation, in +2, in graduation, in master degree, and on PhD and delete, whatever you opt। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप प्रारंभ में कार्य करने में रुचि लेते हैं तो आपके भविष्य स्वतः सुधर जाते हैं, और होने की उसकी सुधरने की सुनिश्चितता बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि ये कहानी आप समझ गए होंगे, और इसमें आपने समझा होगा कि जो मोटिवेशन है, इंटरेक्शन है, ये बहुत ही आवश्यक तत्व है। और किसी भी चीज की शुरुआत में हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए। आज जो हम काम कर सकते हैं उसे कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये प्रकृति में देखने को मिलता है कि हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज का काम आज ही संपादित करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कल पर छोड़ देते हैं।